ویلکم ٹو زومن. آئی ایم زنیرہ اظہر. ایرانی صدر مسعود پزشکیان اس وقت پاکستان میں ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کا دورہ ہے، اسپیشلی جو اس وقت گلوبل آرڈر ہے اس سیناریو میں ایک بڑا کلیئر میسج ہے ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان از کمیٹڈ ٹو اے فارن پالیسی جو صرف ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. ہم ایران کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سب کے ساتھ اپنے ٹرمز پہ چلنا چاہتے ہیں. اٹس اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج while President Trump is pressing hard against India کہ آپ رشیا سے آئل کیوں خرید رہے ہیں، آپ برکس کے ممبر کیوں ہیں. سو لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی یہ سب سے اچھا اس وقت ٹائم جا رہا ہے، اور جو بھی ایفرٹس کی گئی ہیں ہمارے فارن آفس کی طرف سے وہ بہت ہی اچھی ڈائریکشن میں تھیں. اور اس وقت دس از اے ٹائم کہ ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کو جتنا بھی مٹیریلائز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ایسے موقع کم آتے ہیں. اس دورے کی کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کے اندر سے کتنے اینگلز نکلتے ہیں؟ کنیکٹیوٹی ان سو مینی ویز، انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، جیو پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، یہ سب ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حامد المشرقی موجود ہیں اور مجھے جوائن کر رہی ہیں IR ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ می ٹوڈے. ڈاکٹر حامد، ایران ایک دم سے پاکستان کے کافی قریب آ رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ گریٹلی ریئلائزیشن یہ موجود ہے وہاں کی گورنمنٹ میں کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وار کے دوران، اسرائیل ایران وار کے دوران، اور جو انڈیا نے رول پلے کیا ہے اس وار کے دوران، اس سے ایک بڑی کلیئر سگنلنگ ان کو ہوئی ہے کہ the real interests lie with which block. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اسی کی کنٹینویشن ہے؟ کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے پچھلے 20-25 سال میں پوری دنیا کو جہاں دھوکے میں رکھا، وہاں پر اس نے عرب کنٹریز انکلوڈنگ ایران ان کو ایک بہت بڑا ڈسیپشن دیا ہوا تھا. وہ یہ کہ میں آپ کا دوست ہوں، میرے بغیر میری اکانومی آپ کے لیے، میری ہیومن پاور، ہیومن ریسورس، ہر چیز آپ کے لیے. اور ایکچوئل کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ہوا. اور ایران کو جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ فیکٹر ہوا انٹرنلی وہ انڈین را فیکٹر تھا، وہ انڈین فیکٹر تھا جس نے ایرانی اتنی زیادہ جو لیڈرشپ جو ہلاک ہوئی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس کے اندر را اور مساعد کا جو نیٹ ورک نیکسس ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایکسپوز ہونے کے بعد اس کے بعد پھر افغانستان کو 4.5 لاکھ افغانی انہوں نے ود ان لاسٹ 6 ویکس نکالے ہیں، بہت تیزی سے. اسی طرح انہوں نے انڈیا کے اوپر بھی اب ریکنسیڈر کیا. چاہ بہار کی جو پورٹ ہے وہ اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ اب وہ انڈیا کے حوالے نہ کریں. سو اس ساری چیزوں کا ایک فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اور پاکستان کا فائدہ اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کی طرف سے کنسسٹنسی تھی آف اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود ایران ڈسپائٹ آل آڈز. یس، ڈسپائٹ آف آل آڈز. چاہے وہ گیس پائپ لائن پہ ہمارے اختلافات ہوئے، ہمیں فائن کرنے کی بات کی ایران نے، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے 1.5 سال پہلے جو بارڈرز کے اوپر ایکسچینج آف میزائلز ہوا، سارا کچھ، اور مستقل ایرانین بارڈر سے جو کچھ انڈین سپائز یہاں کر رہے تھے بلوچستان میں، اس کی مثال ہے. اور بہت ساری انفلٹریشن ہو رہی تھی، پاکستان اس کو بتا رہا تھا. آن ٹاپ آف جو سب سے بڑی انٹرنیشنلی میں خوبصورتی دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ آج لاہور، اسلام آباد آیت اللہ خامنائی کی تصویروں کے ساتھ سجا ہوا ہے. اور اسی ٹائم پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میرا بہترین دوست ہے. کیا اس سے خوبصورت یا آئیڈیل سچویشن پاکستان کے لیے ڈپلومیسی میں ہو سکتی تھی کہ دو بگیسٹ رائیول ایران اینڈ امریکہ دے بوتھ آر پریزنگ پاکستان اینڈ کلیمنگ ٹو بی دیئر گڈ فرینڈ. ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں اور ادھر سے ٹرمپ پاکستان کو ٹیرف میں ریلیف دیتے ہیں اور انڈیا کو اتنا ہی وہ ایک طرح سے میں کہوں گا بلی کرتے ہیں. اور اس ساری سچویشن کو اگر میں دیکھوں تو میرا خیال یہ ہے کہ ناؤ دس از ویری کریٹیکل. We should not take it as granted. We should capitalize on it. We should capitalize it, utilize it, and we should not take it granted. And we have no, I would say, consideration for other matters. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے ٹرمپ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب کی دوستیاں اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ہوتی ہیں. نیشنل انٹرسٹ، ٹھیک ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور انٹرسٹ جو ہیں جب تک میوچل رہیں تب تک ہمیں فائدہ ہے. سو پاکستان ہیز ٹو کیری آن ود انٹیلیجنس. ڈاکٹر شازیہ، یہ انپریزنٹڈ ہے، جیسے ڈاکٹر حامد بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران جو کہ ہمیشہ سے ایک تھورن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے US کی طرف سے، اور
अभी बम्बारमेंट हुई है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, वॉर हुई है, उसके बाद मार्को रूबियो ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा एक सेंट्रल रोल प्ले किया है इस सारे मामलात में जो कशीदगी हुई थी यूएस और ईरान के बीच में, और बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल हमारा उन्होंने कहा है कि हमने प्ले किया। आप इसकी बैकग्राउंड क्या देख रही हैं? बिकॉज एज लॉन्ग एज इजराइल इज़ देयर, वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, बट ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने उसको टच किया है एंड यूएस रियली थिंक्स कि दैट वाज हेल्पफुल? इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये रियलाइजेशन यूएस को होना कि हम इस रीजन को समझते हैं और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मटीरियली भी की हुई है, इन द टर्म्स ऑफ काइंड भी की हुई है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है अनलाइक इंडिया वो हिपोक्रेटिकल और रेटोरिकल नहीं है। तो एक तो ये कि हम चाहे किसी और ब्लॉक में थे, सऊदी अरेबिया ईरान का रिप्रोचमेंट होने से पहले हमारी चाहे हम टिल्ट कहीं और कर रहे थे, लेकिन वक्त ने ये साबित किया है कि हमने ईरान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा हुआ था, और अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन रिश्तों में दरारें जो हैं वो इस तरह की आ जाती हैं। हमने तब भी बहुत समझदारी से नेविगेट किया, जिसका डिविडेंड आज हम देख रहे हैं। ईरान इंडिया की तरफ टिल्ट हुआ, हमने उसको बहुत ज़्यादा अपोज नहीं किया, लेकिन अब के इस क्राइसिस में जब इजराइल की वॉर जो है एग्रेसिव वॉर थी ईरान पर, पाकिस्तान ने उसको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की, और जो पहला उन पे अटैक था जिसमें बहुत ज़्यादा डिकैपिटेशन हो रही थी, तो उसके बाद वो चीज़ जो थमी, तो वो पाकिस्तान की बहुत एक्टिव सपोर्ट थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से, प्लस एक डायरेक्ट चैनल जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया बिटवीन यूएस और ईरान, वो उसकी एक अपनी जगह पे वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। हम बार बार, हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम बार बार जो है वो इंडिया हमारी हर डिस्कशन में आ जाए। अनफॉर्चुनेटली वो आ इसलिए चाहता है कि हम, बट दैट इज अनअवॉइडेबल, कंपैरिजन जो है वो इस तरह करना होता है कि बिल्कुल, तो वो दो मुल्क एक ही वक्त पे आज़ाद होते हैं, एक ही उनकी उम्र है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें कंपैरिजन से समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आज अगर इंडिया इतना आइसोलेटेड है और डिप्लोमेटिकली इतनी आइसोलेशन का शिकार है कि इवन उसके एलाइज रशिया तक आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो हर जगह पे हाफ हार्टेड है। वो कहीं पे भी आपको 100% उसको नजर नहीं आता है कि सपोर्ट जो है वो किसी को फ्राहम कर रहा हो, तो इस वजह से वो आइसोलेट हो गया। और हमारा ये है कि हम चाहे अफगानिस्तान में तालिबान ही हैं, हमने जहाँ भी किसी की सपोर्ट की है वो बहुत होल हार्टेडली की है, वो बहुत मटेरियल उस पे की है, जिसपे अभी के विजिट में एक बहुत जो है वो हैवी विजिट है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, और ख़ास तौर पे उसमें गवर्नर सिस्तान बलोचिस्तान जो हैं, और उसके बाद जो मीटिंग हुई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की और जो मेजर जनरल अजीज़ नसीरज़ादे हैं ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर, और उसमें जो एक चीज़ हमारा मीडिया भी जो है वो स्किप कर गया है, वो ये कि मेजर जनरल अजीज़ नसीरज़ादे की मुलाकात जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से भी हुई है। तो ये मीटिंग जो है ये भी सिर्फ अर्बन प्लानिंग और पीपल टू पीपल कनेक्शन या रोड और माइनिंग या $10 बिलियन जिसकी बात हो रही है, बिल्कुल इसमें भी क्योंकि ईरान ने S-400 एक्वायर कर लिए चाइना से, डिफेंस कोऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, डिफेंस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो अगर डिफेंस कोऑर्डिनेशन है तो वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली उसका डिफरेंट मतलब है, वो कोऑर्डिनेटेड डिफेंस है, और वो रीजन की तरफ इशारा कर रहा है, वो शेयरिंग जो है वो थोड़े से बड़े स्केल पे करने लगे, वो एक रीजनल अलाइनमेंट, एक बड़ी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और वाकई आप जो कह रही हैं कि वो सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट की हद तक बातचीत नहीं है। नाउ दिस इज़ बिग थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ वॉचिंग, पूरी दुनिया देख रही होगी। पाकिस्तान की सरजमीन पे ईरान के सदर का खड़े होके हमारे वज़ीर आज़म का गज़ा के बारे में सॉलिडारिटी का एक बिल्कुल क्लियर मैसेज देना, इजराइल की बारबैरिटी का जिक्र करना, कश्मीर का जिक्र करना, ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है। इसके बाद आई थिंक अगर कोई एम्बिग्विटी किसी के ज़हन में थी तो वो ख़त्म हो गई है। बट
डू यू थिंक कि इन सारी डेवलपमेंट्स की वजह से नाउ यूएस हैज़ रियलाइज्ड कि हमें यहाँ पे रेलेवेंट रहने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है और इंडिया वो रोल प्ले नहीं कर सका? इज़ दिस व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट? यस जुनैरा, डेफिनेटली। देखिए, दो बातें थी बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में इंडिया को इस खित्ते का चौधरी या का रोल देने की कोशिश की गई, वो उसमें मुकम्मल फेल हो गया। अब वेस्ट को समझ आ गई कि उन्होंने एक गलत घोड़े के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वेस्ट को ये समझ आई है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री स्ट्रेटेजिकली विद इन साउथ एशिया, और उसकी वजह से अब जितने भी नए आप देखिए कि जिसको कहते हैं सफबंदी हो रही है, तो उसके अंदर पाकिस्तान हर जगह नजर आ रहा है। चाहे वो ईरान, सऊदी अरब, यूएई के हवाले से उनके ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ की रोल। अगर पाकिस्तान बात करे कि चाइना अमेरिका की जो आप कहीं कहीं इंटेंसिटी कम हो रही है, उनके बेहतर रिलेशन की बात हो रही है, तो पाकिस्तान इज देयर। कहीं पर अगर बात की जाए कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के हवाले से रोल है, तो वो अब दोबारा से इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को बड़ा क्लियर ये बात अंडरस्टैंड हुई है कि इंडिया ने उसको एक धोखे में रखा। इंडिया ने उसको शाइनिंग इंडिया के नाम पर धोखे पे रखा, इंडिया ने उसको सुपर पावर के नाम पे धोखे पे रखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने जिस अंदाज में राफेल खरीदे, फिर उसके बाद रशिया से खरीदा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा क्लियरली इसको इंडिया की तरफ से डिसेप्शन गिनते हैं कि ना तो आपने हमसे असला लिया, ना क्या आप किसी तरफ भी नहीं है, किसी भी तरफ। देखिए ना, ये तो बड़ी वाज़ेह है ना, ब्रिक्स में आप आते हैं और इसका मतलब है कि आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अमेरिका कहते हैं ठीक है, अगर आप ब्रिक्स का हिस्सा हैं तो फिर आपके क्वाड के कैसे, क्वाड का हिस्सा कैसे हैं आप, कि क्वाड में आप चाइना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं पैसिफिक सी के लिए और उसके लिए। सो ये जो सारी बुनियादी बात है, मेरा ख्याल है सम टाइम जो वक्त होता है, जो सिचुएशन होती है, वो बड़ी फेवरेबल होती है, एनवायरनमेंट बड़ा फेवरेबल है। और पाकिस्तान के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में जब मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, हिस्टोरिकली भी देखा जाए, तो हम इतना अच्छा उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते। चाहे वो अफगान वॉर थी, चाहे वो 9/11 थी, चाहे ये अपॉर्चुनिटीज थी ना, अपॉर्चुनिटीज थी। पाकिस्तान उसमें अपने कश्मीर जैसा मसला भी हल करवा सकता है। आज ये वक्त है कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला भी हल करा सकता है। आज ये वक्त है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत आगे जा सकता है। आज ये वक्त है कि पाकिस्तान अरब रियासतों के साथ इक्वल स्टेटस के ऊपर सारों के साथ एक वो ताल्लुकात मेंटेन कर सकता है जिसके अंदर उनको ये रियलाइज कराया जाए। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, बट आई हैव टू मेंशन इट, कि भाई आपने जो इंडिया पे इतना ट्रस्ट किया, लाखों इंडियंस को जॉब्स दी, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू वुड हैव हैड पाकिस्तानीज, तो हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में बेहतरी आती। आज अगर इंडिया इतना आइसोलेटेड है तो उसकी बुनियादी वजह वो एक्सट्रीमिज्म है, वो उसका वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसने उसको यहाँ पर भेजा। उनकी कंसंट्रेशन उधर है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उस चीज से आज बहुत आगे निकल आया। पाकिस्तान ने वो टाइम देखा है जहां पे वी हैव टू से दैट कि हमने भी रिलीजियस फैक्टर ने हमें बड़ा, एक्सट्रीमिज्म ने हमें बड़ा इफेक्ट किया, हमने 80s में बड़ा कुछ देखा, हमने ये सब कुछ भुगता। तो मैं तो बार बार ये कहता हूं कि कभी कभी जिस कौम की शामत आनी हो, उसका ये हाल होता है कि उसके ऊपर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं जो आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी या रेडिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर अपने मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस डॉक्टर शाजिया भी कह रही, शी इज राइट, कि बुनियादी तौर पर ये जो ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट है, ये एक पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान स्टांस ऑन द वर्ल्ड इश्यूज इज ऑलवेज विद मुस्लिम्स, चाहे वो गजा का हो, कश्मीर का हो या कोई भी हो। और अब दुनिया को ये पैगाम चला गया कि अगर कुछ हुआ तो जिस तरह ईरान के मामले पे सऊदी अरब, यूएई, कतर और पाकिस्तान, तुर्की सब इकट्ठे हो गए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और इसको मैं इन नॉर्मल वर्ड आई एम राइटिंग अ थीसिस कि इट इज आउट ऑफ स्क्रिप्ट। दुनिया ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि इस तरह भी होगा। वेरी राइटली सेड। डॉक्टर हामिद ने स्क्रिप्ट की बात की। मेरे ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद किसी स्क्रिप्ट की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो स्क्रिप्ट्स में नहीं बिलीव करते। वो समझते हैं, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने अगर रशियन प्रेसिडेंट को ये कहा है कि आई विल बॉम्ब यू, और अगर उसने 5% भी मेरी बात पे बिलीव कर लिया है तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। इट मीन्स ही प्लेज विद एम्बिग्विटी। तो ऐसे टाइम्स में डिप्लोमेसी करना इट्स रियली चैलेंजिंग। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं फर्दर कि पाकिस्तान के पास ये जो मौका है उसको किस किस डायरेक्शंस में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। डॉक्टर शाजिया, आई कम स्ट्रेट टू यू। आपने भी वो मेमरी की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें वो अब बड़ा खुल के कहते हैं कि बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको हाईजैक करें और उसे यूज़ करें। ये इजरायली नैरेटिव है, और ऑलरेडी वी नो देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन इजराइल एंड इंडिया।
इंडिया ऑलरेडी प्रॉक्सीज के ज़रिए से ये सब कर रहा है। दूसरा, इधर माइंस एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है। डू यू थिंक कि ये चीज़ अब बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी? ऑलरेडी वी आर सफरिंग, लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो इंडिया सामना नहीं कर सका, सारी दुनिया ने देखा है उसने कैसे एम्बैरसमेंट का सामना किया है। अभी तक जो डॉग फाइट हुई है राफेल वाली वो डिस्कस हो रही है। तो मुझे लगता है इन माई पर्सनल ओपिनियन कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर होती है, इट इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू सामने आके लड़ने के। तो ये अब उस तरफ आपको लगता है अपटेक आएगा दोबारा से? ये उस तरफ ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अगर हम अजीत दोवल की डॉक्ट्राइन को देखें तो वो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं कि मैं एसिमेट्रिकल वॉर का हामी हूँ। मैं किसी भी काइनेटिक और हॉट वॉर जो है वो इकोनॉमी पे स्ट्रेन होता है, तो एसिमेट्रिकल वॉर होनी चाहिए। तो ये बलूचिस्तान में जो आपको दिखाई दे रही है वो एसिमेट्रिकल वॉर ही है। लेकिन जिस थिंक टैंक का आप हवाला दे रही हैं, जिसका जो हेड है वो एक्स मोसाद ऑफिसर है और जिसके फंड्स जो देने वालों में जो अमेरिकन जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसमें 3-4 बड़े नाम हैं। तो ये फिर वही घेरा है और ये वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। और इस विजिट पे हमारे पास सिस्तान बलूचिस्तान के गवर्नर का आना जो है वो भी ये इंडिकेट करता है कि अगर अपने इस तरह के शेडी किस्म के थिंक टैंक में बलूचिस्तान डेस्क बनाकर बैठे हुए हैं और यहाँ से जो डिफेक्टेड लोग हैं, पहले वो यहाँ पे बिलियंस और ट्रिलियंस बनाते हैं, फिर वो बैगों में भर के बाहर निकल जाते हैं, ना वो बलूचों के हमदर्द हैं ना वो पाकिस्तानियों के हमदर्द हैं, और बाहर जाकर वो बयान देते हैं कि बलूच और इजरायली कॉज एक ही है और बलूचिस्तान को हमने लिबरेट करना है। तो वो सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही होती, वो सिस्तान बलूचिस्तान की भी बात हो रही होती है। वो उसको एज वन यूनिट ट्रीट कर रहे हैं, ईरान को और पाकिस्तान को बिल्कुल एज अ वन यूनिट, और जो हमारा न्यूक्लियर पावर होना है उसको भी एज अ वन यूनिट को ट्रीट कर रहे हैं कि ईरान जो है उसको ये सपोर्ट भी, हालांकि हमने ऐसी कोई इंडिकेशन कभी नहीं दी, ना हमारी रिटोरिक में कभी हमने न्यूक्लियर जो है वो हमारी डिस्कशन में हमने कभी, हमारे लिए वो नो गो एरिया है, बस करने की चीज़ है, ना बुली करने की चीज़ है, ना किसी को जो है वो बस है तो है, वो सबको पता है। हमारा जो कन्वेंशनल हमारे वॉर आर्सनल्स हैं वो ही काफ़ी हैं और हमने उन्हीं के साथ दिखा दिया है दुनिया को कि हमें ज़रूरत नहीं है, वो डिटरेंस है, बस है, ठीक है। लेकिन दुनिया इस चीज़ को इस तरह से नहीं मानती है और इंडिया अब इसे हाईलाइट कर रहा है कि ये बार बार एक ही लफ्ज़ आप उनके एनालिस्ट से भी सुनेंगे कि हम जो हैं बिल्कुल भी न्यूक्लियर थ्रेट के बुली को हम नहीं करने देंगे। आपको न्यूक्लियर थ्रेट कौन एब्सोल्युटली कर रहा है? आप एक सिंगल पर्सन इंडिकेट करके हमारी वो पावर कॉरिडोर से भी या हमारे किसी को कभी रिटोरिकल ही थ्रेट किया हो कि जी न्यूक्लियर थ्रेट, तो वो इस चीज को ख्वाब पॉइंट पे ला के ईरान के साथ हाइफनेट करके, और बात वही है जो कि आपको बंद सफ़ों में नजर आ जाती है, जो ये अपने थिंक टैंक के रिसर्च पेपर, क्योंकि आम बंदा वो पढ़ता नहीं है, तो अगर उन पेपर्स आप पढ़ें लाइन बाय लाइन तो जिसके अंदर एक एक बात लिखी हुई होती है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। बलूचिस्तान में वहाँ पे फॉल्ट लाइन जो है वो बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट हो सकती है, वहाँ पे बंदे हम ऑलरेडी जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, और हम पाकिस्तान और ईरान दोनों को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं वाया बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो सारे का सारा ये जो एसिमेट्रिकल वॉर है, अजीत दोवल डॉक्ट्राइन जो है वो इंडिया से फुट सोल्जर प्रोवाइड होते हैं, फंडिंग जो है वो इसराइल की आती है, और खुदा जाने फिर बैक पे और कौन कौन होता है। तो ये डॉक्टर हामिद, मुझे तो लगता है टीटीपी की भी अलाइनमेंट है बीच में। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए टीटीपी हो या जो फितना अल ख्वारिज हो या फितना अल हिंदुस्तान हो, दे ऑल आर वर्किंग ऑन वन एजेंडा। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, इवन ये मेमोरी की रिपोर्ट ले लें या दूसरी भी, इसके अंदर भी ना इन्होंने बहुत सारे फैब्रिकेटेड फिगर्स और फैक्ट्स पे बात की। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि हाउ दे आर थिंकिंग कि जी ये बलूचिस्तान में इस तरह जी के सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इंसर्जेंसी को इस तरह हम सक्सेसफुल कर सकते हैं।
While recognition, कहते हैं recognition could be the first step. No, it is so I would say miscalculated and deceiving for the rest of the world as well. Demographically देखिए वो जो बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच की थी ना फील्ड मार्शल साहब ने इस्लामाबाद कन्वेंशन में, वो बड़ी राइट टू द पॉइंट थी. उसके अंदर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि यार ये 3-4 हज़ार लोग हैं, ठीक है, हाउ डू यू थिंक दे कैन टेक ओवर द होल प्रोविंस और होल हार्ट ऑफ पाकिस्तान. दूसरी बात ये है कि डेमोग्राफिकली मेरा ख्याल है लोगों को फैक्ट्स नहीं पता. सिर्फ कोयटा के अंदर 5.5 लाख के करीब पंजाबी रहते हैं, फिर कोयटा के अंदर हजारा हैं जो 4.5 लाख हैं, फिर उसके बाद कोयटा के अंदर पश्तून है. ये मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ बलूचिस्तान. अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, द एक्चुअल बलोची इंडिजिनस पॉपुलेशन इज लेस देन 34%. उन 34% में भी 90% are always with the state, with the Pakistan, and there is no anti-Pakistan. Right. The only thing we need to understand is that it is a purely enemy infiltrated proxy war, which we have to treat it as a war. हमने इसको ना तो एज ए इंसर्जेंसी डील करना है, ना ही हमने इसको एज ए इंसर्जेंसी तो है ही नहीं. ये सिर्फ एक दुश्मन की तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर है. और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि देयर इज नो डाउट कि दिस इज अ अलायंस बिटवीन इजराइल एंड इंडिया. और बहरहाल हम ये बात समझते हैं कि जब मोसाद का अलायंस आता है तो उसके अंदर उसको CIA की सपोर्ट भी होती है, उसके अंदर रॉ की भी सपोर्ट होती है. हमने बुनियान मरसूस के हवाले से या उस जंग के अंदर हमने जो कुछ देखा, आपको भी पता है कि एक दिन पहले तक अमेरिका कह रहा है जी कि ये हमारी जंग नहीं है एंड दे कैन हैव दिस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान को अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है कंटिन्यूटी के साथ. किसी भी मैं कहता हूँ कि डिसेप्शन में नहीं आना चाहिए, किसी धोखे में नहीं आना चाहिए. और सबसे बढ़कर ये कि अपनी प्रायोरिटीज जो अभी चल रही हैं कि जी हमारा जो फॉरेन रिलेशन है वो सबके साथ इक्वल टर्म्स के ऊपर होंगे, हमारी जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं वो सारे इक्वल होंगे, हम उसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. और मैं ये समझता हूँ कि इस टूर का सबसे बड़ी हाईलाइट हो सकती है अगर पाकिस्तान ऑयल गैस लाइन के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू ऐलान करे. ये बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान के जी अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, इट इज इन अवर इंटरेस्ट. आपने इंडिया को रूस से तेल खरीदने दिया, आपने सारा कुछ करने दिया, तो ये तो हमारा राइट है फॉर द मैनी ईयर्स. इसी तरह चीन के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है और चीन, ईरान और पाकिस्तान और टर्की की जो एक नेक्सस बन रहा है, ये मेरा ख्याल ये है कि ये इकोनॉमिकल रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, इट वुड बी अनइमेजिनेबल बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान. बहुत फायदा होगा. तो सिचुएशन ये है कि अगर दुश्मन कोशिश कर रहा है तो वहीं पर अल्लाह का शुक्र है हमारा अपॉर्चुनिटी भी है. हमारा एक पैरेलल डॉक्ट्राइन चल रही है. इसी को अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और डॉक्टर शाजिया, जो सारे रीजनल CDS की यहाँ पे एक मीटिंग हुई और उसमें जनरल माइकल कोरेला भी आए. अब ये बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है कि वो एक रीजनल CDS की मीटिंग हो रही है बट सेंटकॉम के चीफ भी वहाँ आ रहे हैं. सो इज दिस अ डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ US टू रिमेन रेलेवेंट इन दिस रीजन? बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट कर दिया है कि ये बिल्कुल ऐसा ही था. और जनरल कोरेला वही हैं जो यूक्रेन के बारे में भी अजीब किस्म की डेवस्टेटिंग स्टेटमेंट्स देते हैं. अभी तक उनको यूक्रेन रशिया जो है वो स्टेलमेट लगता है. लेकिन बहरहाल उस बात की तरफ ना जाते हुए कि रीजनल सिक्योरिटी इशू जो है वो पाकिस्तान उसकी स्पिल ओवर को भी रोक रहा है और उसको कंटेन भी कर रहा है और फाइट भी कर रहा है. तो रीजन के अंदर आपका होना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रीजन में सिक्योरिटी का थ्रेट सबसे ज्यादा चाइना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को है. जिसके लिए वो जहाँ भी हैं, चाइना जो है उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान वहाँ पे मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन दे रहा है. और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन अगर आप एक सड़क बनाने को, डैम बनाने को, रास्ता बनाने को या इंजीनियर्स को दे रहे हो, वो इकोनॉमी पे एक कंस्ट्रेन होता है. और बहरहाल हम उसे उठा रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों के फ्यूचर के लिए उसको उठा रहे हैं. तो ये इस बात को समझना कि जी यहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है वो इंडिया को वॉच डॉग बनाकर या उसको यहाँ पे जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसको यहाँ पे एलोकेट करके तो वो सारे उसको समझ कंट्रोल कर लेगा, तो उसके तो बस में ही नहीं है. क्योंकि उसके अपने रिलेशन जो पर्सनल बायलैटरल रिलेशन है वही किसी के साथ ऐसे नहीं है कि कोई उसकी बात सुन जाए या समझ ले या कर ले. लेकिन इसमें ऑप्टिक्स ये जरूर थे कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जाके गुडविल अपने एम्बेसडर भेज रहा है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान जो है
उन्हीं दिनों में जब वो ये जो है वो चीख चिंगाड़ वहाँ पे मची हुई है, पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है अपने कैपिटल में कि टेररिज्म को हमने कंट्रोल कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटकॉम और साथ में हमारे रीजनल पार्टनर भी हैं। तो इसके ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग हैं इंडिया के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपने रीजनल उसकी तरफ आते हैं कि हमारा इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और हमारा जो KPK में जो हमारा जो डिस्टेबलाइजिंग होने का जो फैक्टर हैं उनमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा हैं और उन पे बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया गया है। इसी तरह जैसे ये जो ईरान पे जंग हुई तो उसमें आयतुल्लाह सिस्तानी पे बहुत ज़्यादा बेट कर दिया गया कि शायद वो रिवोल्ट कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने बीच जंग में बयान दे दिया कि कोई मेरा इस बात से लेना देना नहीं, हमारे अपने इख्तिलाफात अपनी जगह होंगे, लेकिन इस वक्त हम एक नेशन के तौर पे खड़े हुए हैं और यही हमारे बलोच जो हैं उनका भी हमेशा से यही वो रहा है। बाकी आपको ईरानियन बलोची कोई भी आपको ये मिल जाएंगे जो कि डायस्पोरा होंगे, ये बाहर रहते होंगे, इनका कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं होगा, इंटरेस्ट है wherever you go, कुछ भी बुलवा ले या ईरानियन डायस्पोरा भी मिल जाएगा। यस, जहाँ भी मैं तो जितने भी थिंक टैंक्स में गई हूँ, आप वॉशिंगटन जाएं, लंदन जाएं, एक डेस्क आपको मिल जाएगा जिस पे एक कोई बलोची बैठा होगा जो कि एग्जाइल में होगा, उसकी सारी फैमिली वहाँ होगी और वो हर थिंक टैंक के इवेंट के ऊपर एक ही एजेंडा लेके बैठता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। जो अभी डॉक्टर हामिद बता रहे थे कि आप कोयटा की डेमोग्राफी ही देख लें, दैट सेज वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि बलूचिस्तान कोई एक ऐसा जजीरा नहीं है जिस पे कुछ और हो रहा है बिल्कुल, और दुनिया उसके लिए बड़ी फिक्रमंद है। हम ये जंग, ये प्रॉक्सी वॉर कब से लड़ रहे हैं, इस टेररिज्म का कब से शिकार हैं। अब ईरान को देर से समझ आई है लेकिन आ गई है, चीज़ें खुल के सामने आती जा रही हैं एंड इट इज़ बिकमिंग ईजियर। जो पाकिस्तान अपना पहले डोजियर्स के ज़रिए से केस प्लीड करता था, अब तो पूरी दुनिया देख रही है, इट्स आउट इन दी ओपन। ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू दिस शो वंस अगेन। डॉक्टर हामिद, गाज़ा का मसला जब तक हल नहीं होता, उसका स्पिल ओवर ईरान तक पहुंचा, चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं, तब तक कोई मसला हल होता नज़र आ नहीं रहा। कमिंग सितंबर में जनरल असेंबली का जो इजलास है, अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ वो रिकग्नाइज़ कर लेती हैं एज अ स्टेट पैलेस्टाइन को, वुड इट मेक एनी डिफरेंस? देखिए, जिस अंदाज से इसराइल ने जिस डटाई से पिछले 2 साल में बमबारी की और किलिंग्स की और मैसेकार किया, जेनोसाइड किया, मैं नहीं समझता इट विल मेक अ डिफरेंस। द डिफरेंस ओनली इज पॉसिबल विद अमेरिकन प्रेशर। एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है, जब तक अमेरिकन प्रेशर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट टू इसराइल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एम्युनिशन सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ लॉबिस्ट सपोर्ट, तब तक मैं नहीं समझता कि इसराइल और नेतन्याहू का जुनूनीपन किसी भी तरह काबू किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि आज हमास ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं देंगे, हम क्यों हथियार डालें। देखिए, अब हथियार डालने की बात किससे की जाती है, जिसको आप, इसका मतलब आप उसको पावर भी मान रहे हैं, आप लेजिटिमाइज करें और आप ये मान रहे हैं कि 2 साल के बावजूद आप उनको खत्म नहीं कर सके। वो जो आपका स्टेटमेंट था। डॉक्टर हामिद, आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट हियर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतनी पॉपुलेशन को मरवा के क्या हमास फेवर कर रही है कि हमास? I 100% agree with you. देखिए, it was an absolutely bad calculation by Hamas, जो 7 अक्टूबर को हुआ या जिस अंदाज में हुआ, उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट नहीं किए। लेकिन वहीं पर एक स्टैब्लिश रेजिस्टेंस भी है और एक स्टैब्लिश थ्योरी एक और ये भी है कि इन एनी केस दे वर प्लानिंग टू डू दैट। वो जा रहे थे रिकग्निशन की तरफ जा रहे थे। देखिए, वो रिकग्निशन की तरफ जा रहे थे, उनकी जो पब्लिक, जो पूरी दुनिया में जो उनके लिए सपोर्ट थी वो बढ़ती जा रही थी, इवन वेस्ट बैंक तक उनकी एक्सेस बहुत बढ़ गई थी। सो इसराइल वाज ऑलरेडी प्लानिंग कि अब गजा को हमने किसी ना किसी तरह कैप्चर करना और पूरा बुलडोज करके इसको बिल्कुल खत्म कर देना है। सो दिस इज आई मीन आई स्टिल सेज कि व्हाट हैपेंड 7 अक्टूबर को जो होता है, शायद मिसकैलकुलेशन थी हमारी, क्योंकि अब जब हमास एक दफा फिर खुल के कह रही है कि वी आर नॉट बैकिंग ऑफ, तो वो तो और बुलडोज करेंगे। देखिए, तो फिर कितना बुलडोज करेंगे, एक चीज दुनिया को ऑलरेडी मुझे तो नहीं लगता वहां कुछ रह गया है। इट इज ऑल रबल। दूसरी बात ये है, अभी तक वो कैप्टिव जो उनके पास है वो नहीं छुड़वा सकते। ठीक हो गया, वो अपनी मर्जी के देते हैं जिनको रिलीज करना है। सो इट शोज दैट डिस्पाइट ऑफ ऑल द पावर एंड टेक्नोलॉजी,
इसराइल कितना मजबूर और बेबस है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। दूसरे एंड पे मैं क्या देखता हूँ कि अगर कभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, थोड़ी हकीकत की बात है कि अगर कभी कोई मुसलमान या अरब रियासतें थोड़ा सा साथ देती और स्टैंड ले लेती तो इतना बड़ा मैसेकर ना होता, बल्कि कोई शक्ल नजर आ रही है आपको? हाँ, अब मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आ रही है, और वो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जो दुनिया के अंदर एक तड़प आई है कि यार वी हैव टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज ए स्टेट। फ्रांस कोई हल नहीं है, यही वाहिद हल है कि जब तक दुनिया इनको अंडरस्टैंड करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी तो ये एक ऐसा प्रेशर है, वन। सेकेंडली, अमेरिका के ऊपर भी यही प्रेशर होगा, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में हो, चाहे वो जनरल UNGA की शक्ल में हो, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की शक्ल में हो। मेरा ख्याल ये है कि eventually now the things are on a very critical situation. One, either इनका वही प्लान है कि जी गजा के लोगों को कोई अल्टरनेट स्पेस दे दी जाए, they are not budging on it, they are not agreed on it, ठीक है। और दूसरा हाल ये है कि अब इसको सीज फायर की तरफ जाया जाए, सीज फायर विद अ 2-state solution, that is the only option. सीज फायर, डॉक्टर शाजिया, सीज फायर जनवरी में आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, पहले दिन से उसकी वायलेशंस चलती रहीं। इजराइल तो बिल्कुल रुकने को नहीं आ रहा, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो देखे नहीं जाते, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, जिस तरह साउथ एशिया में जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक यहाँ पे अमन नहीं हो सकता, उसी तरह अब वो स्टेज आ गई है कि मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट के ज़रिए से वी आर ऑल कनेक्टेड, तब तक अमन नहीं होगा जब तक गाज़ा का कोई सलूशन ना निकले। आपको लग रहा है कि उसकी कोई शक्ल हमें नज़र आ रही हो? देखिए, जिस सीज फायर की तरफ आप इशारा कर रही हैं जनवरी में, वो हमास ने उस पर एग्री किया था, और उसके बाकायदा दोनों पार्टीज़ के विटकॉफ जो हैं, US एनवॉय जो है, उनके सिग्नेचर थे, और उसमें तय ये पाया था कि जंग बंद हो जाएगी, मुकम्मल जंग बंद हो जाएगी, और उसके बदले में तमाम होस्टेज जो हैं वो दे दिए जाएंगे। और मार्च में जो है विटकॉफ ने जो है उससे बिल्कुल उससे मुनहरिफ हो गए। नेतन्याहू ने उसको मानने से इनकार कर दिया और खुद कहा कि हम इसको जंग बंदी नहीं, हम इसको सेसेशन कहेंगे, और ये सीज फायर है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सो एंड सो, और इसके दौरान में हम सो एंड सो नंबर जो है इंस्टॉलमेंट में अपने हॉस्टेज जो हैं वो लेंगे वापस। अब और यहाँ से जो हमारे पास जो फ़लस्तीनी हॉस्टेज हैं वो हम वापस करेंगे, और फिर उस पर भी अगर हमास राजी हो गया तो फिर इन्होंने कहा कि हम उसका जो ऑर्डर है वो खुद डिसाइड करेंगे, और 100 लोगों की लिस्ट दी कि इनको तो हम अभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमास ने कहा कि आप जो सबसे सीनियर है, जिसने जो जितना जुल्म बर्दाश्त कर चुका हुआ है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, आप उसको पहले छोड़ दे। तो ये बातें इस तरह इन्होंने करना ही नहीं था। इन्होंने फिर मार्च के बाद वहाँ पे पानी और खुराक जो है, बिजली ऑलरेडी बंद थी, तो ये वो बंद कर दी। अब ये जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात ट्रंप करते हैं, जिनको मिडिल ईस्ट का बिल्कुल पता नहीं है, शायद उनके ड्रीम में भी कोई आके उनको समझाने की कोशिश करे, कोई एंजल लाइक फिगर, तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बंदे का, एक रियल एस्टेट के अंदर रहने वाला सारी जिंदगी का बंदा, वो इतनी डीप और लेयर्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स नहीं समझ सकता अनफॉर्चुनेटली। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है ये कोई बहुत पीसफुल सा सलूशन है, ये बिल्कुल भी, ये तो और उससे मसला हल हो जाएगा, या आप समझे कि डायनिस्ट जो है वो उन्होंने इसको घड़ा ही इसलिए था, इसीलिए अब उन्होंने उस एरिया में ISIS 2.0 जहां वहां पे इंस्टॉल कर दी है। जुलानी अल-शरा जो है उस पर जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई है, क्योंकि वो भी बिडिंग को उस हिसाब से नहीं मान रहा। उस पर डिमांड की जा रही है कि हमें जो ग्रेटर शाम है वो बना के दो, हमें लेबनान के अंदर जो सुन्नी फ्रैक्शन है उस पर अटैक करो, जो हिजबुल्लाह है उसको भी फिलहाल साइड पे छोड़ो, और साथ में हमें पूरे का पूरा सीरिया हमारे हवाले करो। तुम्हें इसी वजह से इंस्टॉल किया था, और ये सारा है इब्राहिम अकॉर्ड, जो कि एट द एंड ऑफ द डे सेक्टेरियन भी हो जाता है। तो अब ये इसमें ISIS जो है वो उसने इराक में क्या किया, उसने शाम में क्या किया, उसने सीरिया में क्या किया, और फिर हमारे पास अफगानिस्तान में क्या किया। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम इल्ज़ाम किसको दें? उनको जो कि अपने बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता अपने कंफर्टेबल ऑफिसेज में, और कहते हैं कि हाँ, ट्रंप ने रिसेंट भी कहा कि जी हाँ मुझे नजर आ रहा है वहाँ पे स्टार्वेशन हो रही है, लेकिन बहुत आसानी से हमारे जो hypocrisy of the highest order. This is how I look at it, Dr. Shazia. और I'm sorry I have to cut you short here. Time बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर हामिद,
آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شازیہ آپ کا بہت شکریہ. دا تھنگ از کہ جب بھی بات ہوتی ہے پیس کی اور ڈیولپمنٹ کی تو یہ ایک کامن سینس ہے کہ ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی جب پیس موجود ہوگا, اور سسٹینیبل پیس مینس کہ اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی. 2 مہینے 3 مہینے کا سیز فائر اناؤنس کرنا اور اس کی بار بار براؤنی پوائنٹس کی طرح ایڈورٹیزمنٹ چلانا, صرف یہی بات کرنا کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈینشلی ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. جو وہ وعدے کر کے آئے تھے, جو انہوں نے مسلم ووٹ لیا تھا, یوں کہنا چاہیے کہ مے بی ہی لائڈ ٹو ایون ہز ووٹرز. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ, بیکاز انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ پیس آئے گا لیبنان میں, غازہ میں. یہ سارا کچھ جو گلوبل آرڈر میں ہو رہا ہے, اٹ از آل اے اسکرپٹ. یہ بالکل جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا کی, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. میں اور آپ صرف بات کر سکتے ہیں, میٹرز کو الائیو رکھ سکتے ہیں, لیکن جو امیجز آ رہے ہیں, جس طرح کے بچوں کے امیجز آ رہے ہیں, وہ ہانٹ کریں گے آنے والی جنریشنز میں یو ایس کو, اس کی ڈیموکریسی کو, اس کے ہر اس کریڈینشل کو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے سپیریئر ہے. آئی ول سی یو نیکسٹ.